good evening to everyone and a very warm welcome to Mo TV. And today again we have one of our special episodes, special sessions. जो हमारे community के shows होते हैं, they are always extremely special and nice. So today, of course, we have the topic is happiness and peace. I have already got the list of the participants. So मैं आज बस यही request करूँगी that I hope that we are able to finish in time, because last 3-4 episodes, at least last 2-3, we have definitely been going overboard with our timings. So a few minutes here and there, we are good to go. But half an hour, I think we'll just have to limit it to a particular timing. So request करूँगी, because आज भी बहुत लंबी list है, that if we can, go through them so that we finish in time. And so coming back to our spiritual and motivational community. So the topic, as you all know, is happiness and peace. And I think ये एक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी हमें लग जाती है ढूंढने में. हम बस peace और happiness ही ढूंढते रहते हैं, in our lives. So talking about happiness. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Happiness is like a butterfly. You run after it, and it keeps flying away. If you stand still, it comes and sits on your shoulders. So I think as we grow, this is what we realize कि जिसके पीछे हम भागते जा रहे, अगर हम खुद ही अपने में ढूंढे तो वो हमारे पास खुद के खुद ही आ जाती है. And talking about peace, peace comes from within. We do not seek it. Those who are free of resentful thoughts surely find peace. There has to be evil so that good can prove its purity above it. To conquer oneself is a greater task than conquering the others. And the whole secret of existence is to have no fear at all. And that is what peace is all about. Happiness is often the pursuit of worthwhile desires and ambitions, whereas peace of mind is the ability to let go of these ambitions and desires. So with that, I'm now going to hand over to Dr. Manju Arya, who's the moderator for the evening. So welcome, Dr. Manju, and thank you for bringing this special session to us. Thank you. So over to you, Manjuji, for happiness and peace. Okay. As Mother Teresa rightly said, peace begins with a smile. So let's begin the session on a smiling note. Every one of us. I have seen Rituji smile, very sweet. Yes, I'm going to make everyone smile. So I hope. Good evening, Rituji and my dear friends. I extend a very warm welcome to all of you as we come together for this meaningful session titled Peace and Happiness. So I would request Monaji, as there cannot be any better beginning of an event other than Vandana. So she'll sing a Vandana in her sweet voice and will invoke the blessings of Almighty. Monaji. Thank you. Good evening, everyone. And I hope I can sing better than other days. Okay. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय में मेरे
मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मसीहा हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, भव सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे ले लो, बाहों में तेरे ही। जीवन मेरे ले लो, गाँव में तेरे ही। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। बहुत अच्छे मोना दी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया मोना दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बिगिनिंग मोना जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मोना जी, very good beginning. So many positive vibrations have been exuded in the atmosphere, and that's what we want nowadays. Vincent van Gogh once exclaimed, "There is peace even in the storm." Today, as the world struggles to find its way out of one of the deadliest challenges to mankind, we must not forget to find solace in some form of activity or the other. And what a better way than to do such type of spiritual community. Walking ahead in line with this thought, some of our friends will delight us with small packets of joy in this session today. With this, I would like to invite for the first. आवाज नहीं आ रही है अभी, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर मंजू, आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे या आपका वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज सुनाई नहीं पड़ रहा है। Or maybe you could just come closer to the mic till you get the earphones. So first of all, I would like to call upon Mrs. Kiran Keswani ji, and she'll express her
ideas about peace and happiness. Am I audible now? Better hai, Yes. Dr. Manju? Definitely better hai. So you will just have to be closer or maybe use your phones so that we can hear you. Hanji. Good evening, everyone. पीस हमें बाहर नहीं मिलती. पीस और हैप्पीनेस को हमने अंदर खोजना है. खुश रहना हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इस दुनिया में आया है. आज के हलचल भरे समय में. Sorry, Kiran ji, if I can just disturb you for a minute. Kiran ji, I think आपका एक और रूम में ही माइक ऑन है, शायद किसी और ने जूम पे लॉगिन करा हुआ है. So they will have to move away from the room because there's a lot of echo. Mic on. Okay. Good evening, everyone. Good evening, everyone. बाहर नहीं मिलती. पीस हमें बाहर नहीं मिलती. और हैप्पीनेस को हमें अपने अंदर ही खोजना है. खुश रहना हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इस दुनिया में आया है. आजकल के इस हलचल भरे समय में जो छोटी छोटी खुशियां हमें ही मोहा ने दी हैं. इस टाइम हमने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और अपने आप को हेल्दी रखना है. हमारे लिए बहुत बड़ी बात, खुशी की बात है. मैं आपको बताऊं, मेरी नी रिप्लेसमेंट से पहले मैं बहुत दर्द में रहती थी, पर उसके बाद अब मैं काफी खुश रहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को हेल्दी महसूस करती हूँ. हमें अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना. अपने मन पसंद का म्यूजिक सुनना है. पुरानी अच्छी यादें याद करें. अपने मन को बच्चों जैसा बनाएं. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें. प्यार पाने के लिए प्यार करना सीखें. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और इस एज में दूसरों पे ज्यादा डिपेंड ना करें. खुशियां तो हमारे चारों ओर मौजूद है, पर हमें उनको गले लगाने की जरूरत है. कि कभी कभी ये छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए अनमोल हो जाती हैं. अभी कल ही की मैं आपको बात बताऊं, मेरी बेटी ने एक मेरे को वीडियो भेजा जिसमें मेरी 5.5 साल की ग्रैंड डॉटर एक पोएम को कंपोज कर रही है. मैं आपको बता नहीं सकती कि वो सुनने के बाद मेरी खुशी अनमोल हो गई. इसलिए इस एज में मोहा ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने काफी ट्रेंड्स बनाए हैं जिससे हम सब बहुत खुश रहते हैं और हमारा सबका मन भी शांत रहता है. थैंक्स टू मोहा वंस. Wonderful, Kiran ji. Thank you so much. बहुत बढ़िया. So well expressed. बहुत अच्छे किरण जी. बहुत अच्छे. वेरी नाइस. बहुत अच्छा है किरण जी. बहुत बढ़िया बोली. बहुत बढ़िया. Actually, happiness is a sense of long-term well-being, and we are always after the happiness. But do we understand the meaning of happiness? Actually, what we call happiness, is that really happiness? No, that is just satisfaction, and that is just comfort, because happiness is a relative term, and our desires and ambitions for materialistic things like money, position in the society, and big houses, big cars, these are just transitory things, because these things, they have no meaning with the change of circumstances and the time, and then again we are unhappy. So how can we say that happiness is a permanent thing? Happiness may be a path, it is not the destination. And what about peace? Peace is a permanent thing. When our mind is stable, we are calm, and we don't need such materialistic things. We don't have any desire of getting these things. Then peace is achieved. So this is very difficult to say whether peace comes first or happiness comes first. So let us
try to find out through our more speakers, what do they say, what is their idea about peace and happiness. Now I'll call upon Binu Gupta ji for a bhajan. Binu Gupta ji for a bhajan. Binu ji, Hello. Binu Yes, ji, I'm yes, yes. inviting you for a bhajan. यस मे आई स्टार्ट Yes, Binu ji. ओके ओके ये मैं सुनाने जा रही हूँ भजन अमर प्रेम पिक्चर का है, शर्मिला जी पे फिल्म आया हुआ है और ये हैप्पीनेस से ही जुड़ा हुआ है। बड़ा नट खट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया, मैया रे हाँ हाँ। बड़ा नट खट है रे ढूंढ तेरी अखियां तुझे चहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढ तेरी अखियां तुझे चहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का कर यशोदा मैया, मैया रे हाँ हाँ। का कर यशोदा मैया। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। दुनिया जगत धूप जगत है, ममता है छैया, का कर यशोदा मैया, मैया रे हाँ। का कर यशोदा मैया। बड़ा नट खट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया, मैया रे हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Beautiful, Binu ji. Thank you. बहुत अच्छा बिनु जी, Good, good, good. Very good. थैंक यू। ब्यूटीफुल। अधूर Now Rajni Verma ji, she will share her experiences probably regarding peace and happiness. मुझे बोलना है क्या? मेरा नंबर है क्या? हाँ, हाँ, रजनी जी आपका है। जस्ट अभी ज्वाइन किया था मैंने 5 मिनट का। एक आध दो की बाद में बोलूं तो चलेगा क्या? जस्ट अभी ज्वाइन ही किया है मैंने। Dr. Manju, would you like to give somebody else their turn before? Harinder Sahni ji, she may express her thoughts. Mrs. Sahani. Mrs. Sahani, अगर आप कुछ बोलेंगे तो I'll just look for you. वो तो सुन रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको हरिंदर साहनी जी हैं या नहीं? हाँ जी, she's here. हाँ जी, बोल रही हूँ। बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको हैप्पीनेस एंड पीस पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। उससे आपको उसमें थोड़ा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। एक राजा को पेंटिंग बहुत पसंद थी। उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो पेंटर ऐसी पेंटिंग बनाकर लाएगा जिसमें खुशी और शांति झलकती हो, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पेंटर अपनी पेंटिंग लेकर आए। राजा ने उसमें से दो पेंटिंग्स को चुना जिनको कि इनाम मिलना था। पहली पेंटिंग में बहुत सुंदर सी झील थी
उसमें साफ पानी था, शांत पानी, साफ और शांत एकदम पानी था। उसमें आसपास मौजूद जितने हिमखंड थे उनकी छवि ऐसे झलक रही थी मानो कोई दर्पण हो। ऊपर नीला आकाश था, इसमें सफेद बादल ऐसे लग रहे थे मानो रुई के गोले तैर रहे हों। कुल मिलाकर पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही थी। सभी को उम्मीद थी कि इनाम इसी पेंटिंग को मिलेगा। दूसरी तरफ दूसरी पेंटिंग राजा ने पसंद की थी, उसमें पहाड़ तो थे लेकिन रूखे, बेजान और वीरान पहाड़ थे। आसमान एकदम काला बादल थे, आसमान में एकदम काले काले बादल थे जिसमें बिजली चमक रही थी। उसके साथ ही उस नीचे एक झील थी, झील में पानी में इतना उफान था, हवा इतनी तेज चल रही थी कि सारे जो पेड़ थे वो एकदम से लहरा रहे थे, खिल रहे थे एकदम से, जिसे देखकर सबको लगा कि पेंटिंग कितनी बेकार है, इसमें क्या है जो कुछ पता नहीं राजा ने सबको पसंद किया पहले। खैर सभी को था कि पहले पेंटिंग को इनाम मिलेगा, लेकिन राजा ने जब इनाम के लिए बुलाया दूसरे पेंटर को कि तुम्हारी पेंटिंग मुझे पसंद है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। सब हैरान, लेकिन राजा से पूछे कौन, क्योंकि वो पेंटिंग तो इतनी बेकार पेंटिंग थी जिस राजा इनाम दे रहा था। आखिरकार पहला जो चित्रकार था, पेंटर था, उससे रहा नहीं गया। उसने डरते डरते राजा से पूछा, राजा ने आपको इसमें क्या दिखाया? इसमें तो ये तो इतनी बेकार पेंटिंग है, आपको इसमें क्या पसंद आया है? राजा ने उससे शांत भाव से उसे अपने साथ लेकर गया, बुलाया, अपने पास बुला के पेंटिंग के पास लेकर गया। पेंटिंग में राजा ने उसको दिखाया कि एक पेड़ की डाली हिल रही थी, थोड़ी झुकी हुई थी, हिल रही थी। उसमें एक घोंसला था, उसमें चिड़िया अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से, कोमलता से, अपने शांत मन से उनको खाना खिला रही थी। उस राजा ने बताया कि ये देखो, इस चिड़िया को कोई चिंता नहीं है, वो अपने कितने प्रेम पूर्ण भाव से बच्चों को खाना खिला रही है, मुझे इसमें यही एक अच्छा लगा। फिर राजा ने सबको समझाया, कहते जब सुंदरता जो है वो जरूरी नहीं कि वो अच्छी लगे, सुंदरता वो नहीं है जो इस तरह से अच्छी लगे देखने में, उसमें भाव होना चाहिए। और उसमें उन्होंने उस राजा ने फिर समझाया कि देखो, इस परिस्थितियों के प्रतिकूल रहकर भी वो चिड़िया कैसे कितनी खुश है, शांत है, अपना कर्तव्य का पालन कर रही है। इसी तरह से अगर हम अपनी हैप्पीनेस, खुशी और शांति वो नहीं होती जो अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न हो। जब परिस्थितियां इतनी अनुकूल हो कि सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, सब हर जगह खुशी है, कोई दुख नहीं है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई आपको कर्तव्य, कोई आपके पास कोई कर्तव्य नहीं है पालन करने के लिए, तो उसमें जो शांति मिलती है वो शांति सच्ची शांति नहीं है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति उसी में मिलती है जब प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान अपना कर्तव्य का पालन करे। इसलिए और अंत में मैं आपसे यही कहूंगी, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जो जिंदगी है भर के जियो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट कर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो, कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। छोटी छोटी खुशियां ही हमारे जीने का सहारा बनती हैं, ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। Very rightly said Harinder ji, कि one should live in the present. Very nice. If you are thinking about the past, you will be always stressed. Always said. And if you will think about the future, you will always be doubtful whether this will happen or not. Even if it happens, that is not a guarantee that it will last forever. बर्फ जम गई। I think Dr. Manju का नेट चला गया है. So I think Dr. Manju, can you hear me? So anyway, in the meantime, इन्होंने रजनी जी का नाम लिया था, तो रजनी जी, can we come back to you? Right. बोलूं मैं? हाँ जी, प्लीज.
पीस एंड हैप्पीनेस जो होते हैं उस समय और देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही बदलते रहते हैं। समय के साथ में इंसान की फितरत, इंसान की खुशियां और उसकी शांति जो है ना बदलती रहती है। हमें से हर एक व्यक्ति जो है खुशी और चैन के लिए प्रयत्नशील रहता है, हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं किस तरह से और क्या खुश हूँ, किसको किस चीज से खुशी मिलती है, ये वो समय के साथ में बदलती रहती है या उसकी देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हमेशा खुशी जो है बाहरी चीजों से तो कभी भी मिल जाती है, पर अंदर की जो शांति जो होती है वो अंतरात्मा से ही मिलती है। इस सब के लिए हमारा मन ही कारक है। मतलब आप खुशी किसी चीज को देखकर भी खुश हो जाते हैं, किसी चीज को प्राप्त करके, किसी ने सोने का कुछ ले लिया या घर बनवा लिया, इन सब से भी खुश हो जाता है। पर जो मन की शांति होती है, पर जो शांति होती है वो मन से मिलती है, अंतरात्मा से मिलती है। इस सब के लिए हमारा मन ही कारक है। ये सब जो मतलब शांति अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उसका मन ही कारक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मन रूपी रथ के जो दो घोड़े हैं उनमें दो ही घोड़े हैं। मन रूपी रथ जो है उसमें दो घोड़े हैं, एक खुशी और दूसरा अंतर का चैन, अंतरात्मा का चैन। इन घोड़ों की लगाम जो है वो हमारे मन के पास में रहती है। हमारी शारीरिक शांति और खुशी एक एहसास है। साहिर लुधियानवी का गीत है तोरा मन दर्पण कहना है, उसकी वो है लाइन है, सुख की कलियां दुख के कांटे सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। तो मतलब क्या है कि आपकी शांति जो है वो आपके मन के ऊपर रहती है, सारी खुशी जो है मन के ऊपर रहती है। मैं तो जहां तक समझती हूँ कि शांति तो होगी तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। तो अपने मन के अंदर शांति को रखिए और तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। अपने मन की अंदर शांति को रखिए और तो खुशी के लिए दरवाजे खुले रखें। जो हमको खुशी अगर प्राप्त करना है तो शांति को हमको हमारे मन के अंदर रखना पड़ेगा और खुशी के लिए दरवाजे खुले रखना पड़ेंगे, तो खुशी जो है अपने आप मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि खुशी को लाने के लिए बाजू वाली खुशी को नहीं लेकर आइए अंदर, नहीं तो मन के अंदर की जो खुशी है वो भी चली जाएगी, घर के अंदर की जो मन रूपी घर के अंदर की जो खुशी है वो भी चली जाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शांति और खुशी दोनों ही चले जाते हैं। तो सारा कुछ गोरख धंधा जो है इस खुशी और शांति के बीच मन ही निभाता है। समय तो एक एहसास है जो हमको इसी से हमको खुशियां मिलती हैं और वो मिलती है। बस मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। एक बार अभी अगर टाइम होता है, छोटा सा अनुभव है, करीब 2014 या 15 की बात है। मेरा भाई भोपाल मेमोरियल अस्पताल में भर्ती था, आईसीयू में भर्ती था। वहाँ 5 लोग भर्ती थे, जिसमें से 3 लोग जो थे वो मतलब खत्म हो गए, 2 और थे। तो हम लोग रोज वहाँ पर जाकर बैठा करते थे। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति वहाँ पर बैठा करता था रोजाना। तो मैं उससे बोलती थी, हम लोगों के पास में तो 10-12 लोग रहते थे, वहाँ पर लोग बैठे गप्पे करते थे। पर उस बाकी वो बेचारे बूढ़े के पास में कोई नहीं आता था। कि एक दिन बस एक छोटे बच्चों के साथ में एक लेडी आई, घूंघट डाल के आई थी, बस उसके बाद कोई नहीं आया। तो उसके लड़का जो कोमा में चला गया था और वो बार बार यही बोलता था मेरे बेटे का क्या होगा। मैंने कहा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि उसका ऑपरेशन होना था, दूसरे दिन हम लोग पहुंचे तो पता चला उसका ऑपरेशन हो गया है और वो बेचारा बहुत रो रहा है और गार्ड से विनती कर रहा है कि मेरे को एक चादर दे दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा, सारे लोग तो गप्पों में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि क्या हुआ, जरा पूछती हूँ। तो मैंने क्या हुआ दादा, बच्चा तो ठीक है ना आपका? बोले नहीं बाबा, 30-35 साल का लड़का था, जवान। उसका बोले एक ही लड़का था मेरा, खत्म हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं गांव जाकर, मतलब वहां से 25-30 किलोमीटर दूर से, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है कि मैं इसको मतलब चादर ओढ़ा कर दूं। गार्ड्स कह रहा हूँ कि एक चादर ही दे दे कम से कम। लेकिन वो मना कर रहा था कि नहीं हम सुनाई दे रहे हैं। हाँ जी, किसी का माइक खुला था, इट्स बीन क्लोज्ड नाउ। तो फिर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मैंने करके बहुत रो रहा था। तो मैंने कहा कि क्या करूं। तो मेरे पास 500-700 रुपए पर्स में थे। मैंने कहा दादा आप ये ले लीजिए मेरे पास से, मेरे मुझे बहुत दुखी हो। मैंने गार्ड से भी बहुत कहा, तो गार्ड बोला कि अरे जी यहाँ तो रोज आते रहते हैं, तो अस्पताल यहाँ तो रोज मरते रहते हैं, हम लोग किस किस को देते रहेंगे, आप तो ध्यान मत दीजिए, आप तो काम करिए, आप तो अपने मरीज को देखिए। तो मेरे को बड़ा वो लगा कि देखो मतलब कैसे लोगों की मतलब वो मर जाती हैं, यानी
भावनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर मैंने उसको दिए पैसे, और जो हमारे साथी लोग थे फिर उन लोगों को भी देखा था कि उन लोगों को भी लगा। फिर वो जो गार्ड था उसका भी मन पसीजा, और उसने भी फिर उसको चादर कहीं से ला कर दी। कोई बात नहीं है मैडम जी, ये बोला हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, इस वजह से नहीं दे रहा था मैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी सैलरी से कटवा लूंगा। लेकिन उस दिन मतलब मुझे इतनी उसके चेहरे पर उस समय जो लड़के के जाने का जो गम था वो तो था ही सही, लेकिन उस समय उसको सिर्फ ये लग रहा था कि मेरे घर में कैसे पहुंचूं और मैं घर वालों को कैसे मतलब बुला सकूं और इस बच्चे का संस्कार कैसे कर सकूं। तो उस समय जो मैंने उसको पैसे दिए और उसके चेहरे पर एक जो चैन की सांस मुझे मतलब चैन की मतलब छवि नजर आई उसके चेहरे पर, वो जो छवि मेरे मन में से कभी नहीं हटती, और मुझे उससे बड़ा संतोष लगा, बहुत शांति मिली कि वास्तव में हम दूसरों की सेवा करके, दूसरों के लिए कुछ करके जो हमें खुशी और जो हमें चैन मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो हमेशा इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि हम दूसरों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो जाती है। बहुत सारी चीजें खरीदने से हमको खुशी प्राप्त नहीं होती, जब हम किसी दूसरों के चेहरे पर हमारे छोटे से प्रयत्नों से अगर हम दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो वो जो खुशी होती है वो बहुत अपरिमित, असीमित होती है। मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बोलना जानती नहीं है, जैसे यहाँ बहुत अच्छे लोग बोल पाते हैं, पर हाँ ये कि ये मेरा अनुभव है। मंदिर में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग वहाँ पर बहुत पैसा चढ़ाते हैं, लाखों को लोग देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, कोई 50 का, कोई 500 का, कोई 1000, ऐसे लोग चढ़ाया करते हैं। वहीं गरीब लोग बाहर बैठे रहते हैं तो अपना पर्स टटोलते हैं, 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं कॉइन मिल जाए तो वो उसको दे दें। अरे भाई मंदिर में तो इतना पैसा है, ना भी देंगे चलेंगे, पर किसी गरीब को आप अगर इतना दे सके, मैं हमेशा 20 रुपए या 10 रुपए ऐसा पैसा रखती हूँ, ये कुछ खाने की चीज रखती हूँ और वो देती हूँ। मंदिर में भले 1 रुपए ना चढ़ाऊं लेकिन मैं उनको जरूर देती हूँ कि चलो एक दिन के लिए खाने का तो उनका जुगाड़ हो जाएगा कम से कम। यही मेरी खुशी है कि दूसरों का दुख दूर कर सके, वही सबसे बड़ी खुशी है, और उसी से जो शांति मिलती है मन के अंदर, वो शांति बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शब्दों में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी, आपकी भावनाएं बहुत सुंदर, अच्छी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बोला, दिल से अपने मन की बात बोली आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो शंभवी जी ने बिल्कुल मोदी साहब की तरह मन की बात का लेसन कर दिया आज हमारे यहाँ सामने। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल रजनी जी, वो सबसे अच्छी होती है पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। हाँ जी रजनी जी, आपने बहुत ही अच्छा संस्मरण सुनाया, और प्रोबेबली दिस वाज नॉट ओनली हैप्पीनेस, दिस रिफ्लेक्टेड योर इनर हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। जब कोई स्टेबल माइंड होता है, बैलेंस्ड होता है, काम होता है, तब ऐसी बातें उपजती हैं, अदरवाइज नोबडी केयर्स फॉर एनीबडी। रिमेंबर, लाइफ इज शॉर्ट, टिल द टाइम यू आर ऑन अर्थ, डू सम गुड वर्क, bring happiness and turn tears into smiles, and this is the life, this is true happiness. Really, I applaud you for that. So nice. So I now call upon Subhash Arora ji for rendition of a bhajan. थैंक यू वेरी मच। मैं पीस और हैप्पीनेस की कामना प्रभु से ये अपने इस गीत में कर रहा हूँ। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गन नाशक हारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो।
भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधी नहीं विचारे हो। कारण का कुछ नहीं, छिन ही चारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भगवान महामहिमा तुमरी, समझे बिसरे बुधियारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुमको प्रभु पाए प्रताप हरि, सही के दुख और विसारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। वाह, थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सवाल जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत वेरी अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा, बड़ा टचिंग था, बहुत ही अच्छा। It had to be Sehgal साहब का original and बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। KL सहगल जी का। वाकई। नहीं, ये मुकेश का, KL सहगल का नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ओके क्या सेकंड का? ओके। The day we start believing in the supreme power, there is no dearth of happiness, and God is the only power that can lead us unto the light, unto the immortalship. And one is not immortal when he loses his does not lose his life. He is immortal due to the deeds he has done. And these things come into mind when your mind is stable, it's calm, it's free of all those things, jealousy, competitions and greed. So peace of mind comes when you are free of all the desires, all the ambitions and all these things which put you behind. So first of all, try to love yourself. When you love yourself, then you start loving others. When you forgive others, you get mental peace. So certain things are essential for getting peace. Now I'll invite Suresh Malhotra ji for expressing her thoughts. स्नेही इमोहा बंधुओं व बहनों, सप्रेम नमस्ते। आज के इस आध्यात्मिक सेशन में मैं जीवन में आनंद और मानसिक शांति प्राप्त करने के स्रोतों पर अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रही हूँ। मानव चिंतनशील प्राणी है। अपने अपने विचारों से इस दुनिया में रहते हुए खुशी ढूंढने में अनवरत व्यस्त रहता है। शांति, आनंद, सुख, संपदा कौन नहीं चाहता। अपनी रुचि, अपने स्वभाव, अपनी संगति के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार खुशी के रास्ते ढूंढते ही रहता है।
संघर्षरत है। किन्हीं की सांसारिक सुखों के रास्ते हैं, किन्हीं के आत्मिक और आध्यात्मिक। सभी कायिक, दैहिक, दैविक, मानसिक और प्राकृतिक भौतिक कष्टों से भागना चाहते हैं। मेरे विचार में ईश्वर ने हमें इसलिए उत्पन्न किया है कि हम मानव धर्म को जानते हुए मानवता की सेवा करें। भगवान ने हमें सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि मानवता हमेशा फले फूले। हमारे पास जो कुछ है हम दूसरों को समर्पित करें। जब ईश्वर से हम ये सोचते हैं कि हम जो मांगे हमें मिले, तो भगवान ने हमें भी ये इस बात के लिए सामर्थ्यवान किया है कि तुमसे भी कोई अपेक्षा करे तो तुम भी उसे प्रदान करो। विवेकानंद कहा करते थे, मानव सेवा ही नारायण सेवा है। भारतीय संस्कृति चिरंतन काल से सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करती आई है, जो मानव के सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के पक्षधर रही है। सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़िए, यही लौकिक और पारलौकिक आनंद प्राप्ति का महामंत्र है। सत्य चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद, अर्थात गूंगे का गुड़, अनिवर्चनीय, जो बता नहीं सकता कि कितना मीठा था। इतना ही है परमानंद प्राप्त करना। तो आइए आज हम इसी त्रासदी को दूर करने के लिए खुशियों को इस बात में लें कि हम किस प्रकार मानवता की भलाई कर सकते हैं। कबीर कहा करते थे, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने वो काफिर बेपीर। अर्थात जो दूसरों का दर्द ही नहीं जानता तो वो क्या पूजा करता है और क्या आयतें पढ़ता है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब भगवान की संतान है। सब जीव जंतुओं को प्रभु प्यार करता है, तो हम कौन सी बाग की मूली हैं जो हम उन्हें अहंकार में प्यार ना करें। कौन है ऊंचा, हम किस तरह अपने आप को ऊंचा समझें। रहीम का दोहा व्यक्त करता है, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अर्थात क्या पता भगवान हमारी कौन सी परीक्षा करता है, किन भूखे नंगों में कृष्ण घूम रहे हैं, किस में राम घूम रहे हैं। सबको गले लगाओ, सबसे बोलो। कितनी खुशी होती है जब हम उनके मुख पर कोई मुस्कान ले आते हैं। तो आइए आज हम याद करते हैं इंग्लिश पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये पंक्तियां। He prayeth best who loveth best all things great and small, for the dear God He loveth us, He made them all। सच में खुशियां बरसाने में अलौकिक और स्वर्गिक आनंद मिलता है। Happiness is a perfume you cannot sprinkle into others without getting a few drops on yourself। मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी खुद ही लग जाती है, उसकी उंगलियां रंग में रंग जाती हैं। छू ना सको आसमान तो ना सही, छू ना सको आसमान तो ना सही, लोगों के दिल को छूने का आनंद भी आसमान से कम नहीं, वो सबसे उत्तम है। तो बोल प्रिय भाषण, मधुर भाषण के दुखी हृदय में प्रेम की बरसात कर देते हैं। मैं अधिकतर अनाथालयों में जाया करती हूँ। मैं बच्चों के जन्म दिवस हमेशा प्रतिवर्ष राई बालग्राम जाया करती थी। उन्हें मिठाइयाँ, पुस्तकें, खिलौने बांटने में मुझे जो आनंद मिलता है वो मैं सीमाबद्ध नहीं कर सकती। कई छात्र छात्राओं को मैंने पढ़ाया, उनकी मैं अभिभावक बनी, उन्हें कर्नल तक के पोस्ट तक मैंने पहुंचाया। एक कर्नल भारत भूषण, उनको जामनगर में लगे हुए हैं, उनको मैंने ही पढ़ाया। पर मुझे इतनी खुशी होती है जब वो प्रगति करती है। कई लड़कियों की शादियों में मैंने काफी योगदान दिया। इसमें मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, मैं इसलिए कह रही हूँ
कि इन छोटे छोटे कामों में भी हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अपने शब्दों में सही वर्णन करते हुए अगर मैं कहूँ तो भगवान के बनाए हुए बंदों को गले लगाओ, वहीं तुम्हारा भगवान निवास करता है। मुझे कबीर की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग विराग में, खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। धन्यवाद। बहुत अच्छे सुरेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड सुरेश जी, सुरेश जी बहुत ही कमाल कमाल, वेरी गुड। सुरेश जी आपकी wonderful thoughts, really. गर्भित थी, Such wonderful सार thoughts. गर्भित थी। मतलब you did wonders in your speech. I must say कि when we see happiness in the happiness of others, that's when we will be truly happy. That's when we will be truly happy. And that will give us mental peace. Mental peace is not a representative of desires or any acquirements. Mental peace is a state of calmness when we are truly contented and don't need anything from exterior. Actually, so people say that mental peace is a expression of dullness. They are misunderstood. थोड़ा ठंडा है, Not dullness, it's calmness. गर्म हो जाता है। सुरेश जी ने एक शब्द बोला था बीच में, और ये पूरे जितना भी उनकी स्पीच है उसका निचोड़ था गूंगे का गुड़। हैप्पीनेस इज गूंगे का गुड़। जी जी, बस अनहद है, which cannot अनहद be है। यस 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 यस, इसको इतने से शब्दों में ही पा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा बोलने के लिए। Thank you so much. थैंक यू सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा। You are all welcome because you are all good listeners and good human beings. That's why you can understand this language. Okay. सुरेश जी बहुत ही बढ़िया, एकदम मन की बात आप कहते हैं। So next I'll call upon Swarna Bhattacharya ji. I will not say much. One thing I can understand that peace and happiness go together. You cannot separate. If you don't have peace, you cannot get happiness. And to get the nursing and devotion, so the devotion also changes your mind and get peace. So I'm going to just sing one bhajan for this.
ये बंद करते, ठीक है। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। देह की माला तिलक छाप ही कुछ काम की, देह की माला तिलक नाम की, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, नाथ के मन आएगा, सोही परम पद पाएगा। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, दिल के दर्पण को सफा। So it doesn't matter, Swarnaji will come again, and there is some technical problem, so it cannot be told just now. I'll request Subhash Bansal ji to express his thoughts. Good evening, Subhash friends. Bansal ji. Haji, good evening, friends. Am I audible? Yes, very much. Good evening, friends. The desire to have happiness is natural. It does not have to be learnt. Happiness is not just a feel-good experience, nor is it a mere sensory experience. It is basically a mental experience. It is a state of our mind where our mind actually feels well-being. Good health, material facilities, wealth, friendships, or company all contribute to happiness. All these soothe our mind with comfort and security. These are very valid comforts. It is important to have security and comforts. But as long as there is no inner discipline that brings calmness and peace to mind, no matter what external facilities or conditions are there, these will never give feeling of joy and happiness. On the other hand, if one possesses inner peace and calmness of mind, a degree of stability within us, then even if one lacks various external facilities, it is still possible to have a joyful life. According to Vedanta, the Atma within us is the seat and source of all experiences, including happiness. The Atma or Self is referred to Sat Chit Ananda, which translates as ultimate truth, consciousness, and bliss. Therefore, happiness is inbuilt right within us. It is our very nature. It is about enabling our body-mind complex to express that inner nature. There are three layers of mind. Beneath the conscious mind is the subconscious, and further below is the unconscious mind. The conscious mind is the inlet to the subconscious mind and unconscious mind. To understand with the two functions of mind is to look upon mind as a garden. हमारा माइंड एक बाग के समान है और कॉन्शियस माइंड एक माली के समान है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त बीज बो रहा है। ये बीज हमारे थॉट्स हैं जो कि हम सारे दिन आदतन सोचते रहते हैं। Whatever goes to our subconscious mind becomes our sanskars and our memory, which comes back to conscious mind as our habits. Therefore, फूल बोएंगे तो फूल मिलेंगे और कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। As one sow, so shall you reap. From infancy, the majority of us have been given many negative suggestions.
We consciously accepted them and stored in our subconscious mind. Subconscious mind is full of fear, anxiety, worry. These negative emotions sitting in the subconscious mind are released and flood the conscious mind with a sense of panic, urgency, despair, etc. To remove these negative emotions, we have to first remove the cause. As we have seen, the cause is the way we are using our conscious mind. In other words, the way we are thinking and picturing in our mind. Peace of mind, along with a healthy body, is inevitable when we begin to think right way. Intake to our conscious mind happens through our five senses. By giving ourselves wrong exposures, we fill the mind with wrong content. Herein lies the value of Gandhiji's three monkeys, which depict see no evil, hear no evil, and speak no evil. Such control is meant to bring harmony into our thought world. Shankaracharya said, Ahara Shuddhu, Shuddhu Sattva Shuddhi. If we want Shuddh Sattva, that is pure sattvic mind, then we have to take good food through our all senses. What we see, hear, etc. is a food for thought, hence food for conscious mind. This means what we see, what we hear, what we expose ourselves to should be noble and good. Good content will create good sanskars in mind. Just as we choose our nutrition carefully, spend time on health of body, we should choose to intake of senses consciously and improve the health of mind to have positive emotions. That is the reason in our culture there is lot of emphasis on Susangati, Satsang, Swadhyay, and need to have a Sadguru. Brain is plastic and malleable. We can actually change the circuitry of our brain through the power of thoughts. Herein lies the importance of meditation. Meditation is the conscious, deliberate, willful thinking of positive emotions such as love, joy, compassion, health, gratitude, etc. These positive emotions bring peace of mind and bring happiness. This has been proved scientifically in an experiment where Buddhist monks' brains were scanned. Meditation, like body exercises, need to become our daily routine on our everyday basis. We must learn to calm our mind, quieten it, regulate its tendencies through consciously cultivating habits and empty our mind of unnecessary content. In summary, happiness is the harvest of peaceful mind. Anchor the thoughts on peace, poise, joy, and divine guidance, and mind will produce happiness. अंत में मैं आपसे एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना काल में टीवी में, सोशल मीडिया में हमने बहुत सुना कि कैसे मेडिसिन, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस पे ब्लैक हुई। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। And we may go with the feeling that human beings are very evil. लेकिन जहाँ कुछ लोग कोरोना की ट्रेजेडी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वहीं उनसे कहीं ज्यादा लोग अपनी जान की परवाह ना करके सेवा भाव में लगे थे, जिनके बारे में बहुत कम बोला गया। यहाँ मैं एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के बारे में। मेरे मामा जी 77 वर्ष के हैं और वो एक डॉक्टर हैं। वो यमुनानगर, जो कि एक स्मॉल टाउन हरियाणा में है, में प्रैक्टिस करते हैं। उनको कोरोना हो गया था और मैंने उनको फ़ोन किया तो वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे और पेशेंट देख रहे थे। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो पेशेंट टेली कंसल्टेंसी से नहीं बल्कि फिजिकली देख रहे थे। जैसे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बड़े गर्व से मुझे बताना शुरू किया कि कैसे उन्होंने अपने पेशेंट्स की जान बचाई। मैंने उनसे कहा, मामा जी क्या आपको डर नहीं लगता है? तो उनका जवाब था, मौत के डर से मैं अपनी जिम्मेदारी तो नहीं छोड़ सकता, और फिर यह शरीर तो भगवान की अमानत है, जब चाहे भगवान ले जाए, मौत से क्या डरना। Such positive stories brings us hope, trust and peace in place of fear and anxiety. Thank you very much.
बिल्कुल सही सुभाष जी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे सुभाष जी। अच्छा बोला है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। It was a wonderful sharing of thoughts by Subhash. Now, Neelu ji, I'll invite you to recite a poem and some thoughts of yours we will share. नमस्कार सभी मेरे दोस्तों को, बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से लगभग 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जब हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ते हैं तो ऑफिशियली हमको एक 5 दिन का कोर्स करना होता है जिसको हैप्पीनेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो मैंने भी वो प्रोग्राम किया था। फर्स्ट डे हम लोगों को एक डायरी और पेन दिया गया और कुछ सवाल पूछे गए। पहला सवाल ये था कि आप क्यों आए हैं इस प्रोग्राम में, आर्ट ऑफ लिविंग से क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो 15 से 55 साल तक के पार्टिसिपेंट थे उस प्रोग्राम में। सभी का लगभग एक ही जवाब था कि हम खुशी पाना चाहते हैं, हम मानसिक शांति चाहते हैं। तो दूसरा सवाल ये था कि अच्छा किस चीज में आपको खुशी मिलेगी। तो खुशी की परिभाषाएं सबकी अलग अलग थी। किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, मुझे भी शायद जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो तीसरा सवाल उनका ये आया कि आप बहुत पहले जाइए, बचपन में जाइए और सोचिए कि आपकी क्या क्या खुशियां रही हैं। मैं भी अपने बचपन में लौटी और मैंने याद किया कि जब मैं 2.5-3 साल की थी, मुझे मेरी माँ की गोद में ऐसे छुप के दुबक के बैठना बहुत अच्छा लगता था। माँ का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे उनके भागना बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी और बड़ी हुई तो मैं चौक से ड्राइंग करती थी स्लेट के ऊपर, तब स्लेट्स हुआ करती थी। तो मैं जब ड्राइंग बनाती थी मेरे पापा ताली बजा के मुझे एनकरेज करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो तालियों की गूंज आज भी जब मेरे कानों में पड़ती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। थोड़े और बड़े हुए तो खाना, जो हमारी माँ खाना बना के देती थी, उसमें बहुत ज्यादा रुचि जागी, खाना बहुत अच्छा लगने लगा। फिर और अगली खुशी क्या हुई, साइकिल से स्कूल जाते थे, सहेलियों के साथ मौज मस्ती करते थे। खुशियां कितनी तेजी से बदलती गईं। फिर हम कॉलेज में आ गए तो थोड़े फोकस्ड हो गए एकेडमिक के प्रति। अच्छे नंबर आने चाहिए, सोच सोच के रोमांच होता था, अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छे पोजीशन आनी चाहिए, कंपटीशन इतना ज्यादा है। चलो वो वाला फेज भी निकल गया। फिर एक ऐसा मोमेंट आया जो सब लड़कियों की लाइफ में आता है कि कोई सपनों का राजकुमार आएगा और ब्याह कर ले जाएगा। सोच सोच के शर्माते थे, खुश होते थे। कितनी तेजी से खुशियां बदल रही हैं हमारी। सपनों का राजकुमार आया और देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह बात यहाँ पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि वक्त, परिस्थिति और उम्र के साथ हमारी खुशियां किस तरह से बदलती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें एक खुशी मिल गई, हम उसको पकड़ के बैठ गए और खुश हो गए। बहुत ज्यादा तो नहीं कि हाँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के 5 साल पहले तक आप सबको ले जाना चाहूंगी। वो समय था कि जब मेरी माँ की डेथ हुई और उसके कुछ समय बाद में रिटायर भी हुई। काफी सारी बातें मेरी माँ कहा करती थी, मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रही हूँ उनसे। वो अक्सर मुझसे कहा करती थी, नीलू जितना भी तुम कमाती हो उसका 10% तुमको कम से कम दान में देना चाहिए। वो किसी भी रूप में करो, किसी भी रूप में। मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे लगता था भाई मैं अकेली कमाने वाली, मुझे भविष्य का भी देखना है, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। एक दिन उन्होंने मुझे चेतावनी दी और पकड़ के बिठा लिया कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अपनी अर्निंग्स का 10% तुमको डोनेट करना चाहिए बेटा। अभी से शुरू कर दो। अभी तक आप सिर्फ ले रहे हो, आप ले रहे हो। देने की प्रक्रिया में आ जाओ। देना कब शुरू करोगे? तो मैं 10% की बात से थोड़ा चिढ़ गई। मैंने थोड़ा टेढ़ी नजर हुई मेरी, थोड़ा गुस्सा मुझे आया। मैंने कहा क्या बात करती हो मम्मी, अगर मेरी 80,000 सैलरी है तो आपको लगता है मुझे 8,000 डोनेट करना चाहिए? 8,000 आई मीन आप कैसे सोच सकते हो? बोली हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा लग रहे हैं 8,000। हाँ मैंने कहा बिल्कुल बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो फिर कम कमाओ, 20,000 कमाओ और 2,000 डोनेट करो। कुल मिला के बात ये थी कि उनका फंडा इतना क्लियर था कि अगर आप इतना कमा रहे हो तो आपको इतना वापस समाज को देना है। उस समय मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन हाँ उनकी डेथ के बाद ये चीज मेरे दिमाग में बहुत रही। मेरे अभी मित्रों ने, सुरेश जी ने बोला, रजनी जी ने बोला कि हमको देने से कितनी खुशी मिलती है। ये जो देता है
उस खुशी को वही महसूस कर सकता है। मैंने भी सुरेश जी की तरह कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई मेरे सिर है, उनके यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह मैं देती हूँ और बहुत बहुत विश्वास करिए बहुत खुशी मिलती है। साल में ऐसा होता है कि जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ यहाँ पे हमारे सर्विस स्टाफ है कम से कम 40 लोगों का, गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इनको साल में कम से कम 2 बार मैं गिफ्ट देती हूँ, चाहे वो बेडशीट्स हों या टॉवल्स हों या फ्रूट बास्केट्स हों, और वो देखकर जो उनके चेहरे पे मुझे खुशी दिखाई देती है, उस खुशी को देखकर मुझे खुशी मिलती है एक्चुअली। तो हमको ज्यादा फायदा हो रहा है, उनसे ज्यादा फायदा हमको हो रहा है। तो मैं सुरेश जी की बात से पूरी तरह सहमत करती हूँ कि हमको जब देना बहुत पहले से देना शुरू कर, मुझे लगता है मुझे ये समझ ही बहुत लेट आई है ये खुशी मैं बहुत पहले से डिजर्व करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू लेट, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इट इज नेवर टू लेट। फिर हम आते हैं अभी लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन में कैसे खुशी मिली। मेडिटेशन मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन लॉकडाउन में सच्ची वाली मेडिटेशन की और अपने साथ समय बिताने का बहुत ज्यादा समय मिला। जैसे बहुत थके हुए पैर होते हैं, उनको समेट कर जब हम बैठते हैं कितना सुकून मिलता है, उससे भी ज्यादा सुकून मेडिटेशन में मिला और मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। उसके बाद हमारा आया सेकेंड वेव जो इसकी कोरोना की आई। सभी की तरह मैंने भी बहुत सारे अपनों को खोया, लगभग 9 लोग मेरे परिवार से गए। वर्चुअल प्रेयर मीट्स हम लोग करते थे, आंखों से आंसू बहुत बहते थे। इसी मानसिक स्थिति के चलते मेरा थोड़ा साहित्य के प्रति रुझान हुआ और मैंने कुछ कविताएं पढ़नी और सुननी शुरू करी और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगी। जैसे बात आज हैप्पीनेस की हो रही है कि मुझे अच्छी कविता पढ़ना, अच्छी लेख पढ़ना मुझे अच्छा लगने लगा। तो जब हैप्पीनेस की बात आई आज, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कविता मुझे ज़रूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दुख, उदासी और निराशा जो इस समय समाज में भरी हुई है, हम लोग बौखलाए हुए हैं, हम लोग टूट चुके हैं। ऐसे में हिम्मत और हौसले की अगर बात कही जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मुझे लगता है ये कविता आप लोग को भी अच्छी लगेगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तुमसे हो नहीं पाएगा, यह है कविता का शीर्षक। वो कहते हैं कि तुमसे हो नहीं पाएगा, ये 4 लफ्ज झुठलाते हैं हमारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीन और नए आसमां पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 लफ्ज सच है तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां की मिट्टी लाना झूठ है? क्या एक लंगोटी पहने फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीतकर आना झूठ है? क्या 9 मजहबों वाले और 3000 जातियों वाले देश का एक तिरंगे तले आकर जन गण मन गाना झूठ है? तुमसे हो नहीं पाएगा। अरे जरा कह दो उनसे, जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सुई और रुई बनाते थे, आज हम रॉकेट बनाते हैं। आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। चलो मान लिया, चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है। चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है और चांद फीका। मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है जिंदगी का। मान लिया कि आज कश्तियां डगमगा रही हैं, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे। अरे पैरों में एक कांटा चुभ गया तो क्या? पैरों में एक कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी? एक दिन हम तुम्हें सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, उड़ लो। आज तुम्हारा दिन है, हवाओं में उड़ लो। कल हमारा दिन होगा, तुमको ठोकरों से उड़ा देंगे। आज कैलेंडर पर तारीखें ठहर गई हैं तो क्या? आज कैलेंडर पर तारीखें थम गई हैं तो क्या? वो दिन भी बीते हैं, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। ये दिल परिंदा है, ये दिल परिंदा है, फिर से फड़फड़ाएगा। ये दिल परिंदा है, फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा
और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम कर आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। मैं फैज की 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, सुबह होगी जरूर होगी और जल्दी ही होगी। आमीन। धन्यवाद। अरे बहुत अच्छे थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। जी बहुत ही अच्छा, इतना प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली था, मन को हिला दिया, मजा आ गया। नीलू जी आपकी भावनाओं का मैं समर्थन करती हूँ। दूसरों के दुख दूर करके जो हमें खुशी मिलती है वो किसी भी खुशी से कम नहीं है, सबसे बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा नीलू जी, आपकी दिल को छू लिया। मम्मी के जो भाव थे और जो थे उनको वाकई नमन करती हूँ मैं। और कितनी साफ गोई थी आपकी बोलने में, बहुत डांटते थे। और डॉक्टर मंजू अपना माइक अपने पास पकड़िए प्लीज जरा। वो बहुत डांटती थी मुझे, बहुत डांटती थी, बहुत डांट खाई है मैंने। मेरे ख्याल में उस उतना ही प्यार करती थे, बहुत मेरे प्यार। ख्याल में जो उस डांट और प्यार का जो मिश्रण था ना, उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है, जो इतने सुंदर शब्द आपके निकल रहे हैं और इतनी साफ गोई आपकी कि मैंने शायद उस टाइम किया कि नहीं किया, पर मम्मी के बाद में किया। रियली आप बहुत बहुत अच्छा लगा नीलू जी, बहुत ही अच्छा लगा नीलू जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिसिंग इज बेटर देन टीचिंग। सब जो बोलेगा उसमें फोटो आ जाएगी। नाउ आई कॉल अपॉन हरीश जी श्रीवास्तव। नीचे आएंगे हरीश जी। वहाँ के साथियों को नमस्कार। शांति और खुशी के बारे में कुछ मैं अपना बोलना चाहता हूँ। शांति और खुशी तो बहुत ही सरल शब्द हैं, लेकिन इनका तात्पर्य और प्रभाव बहुत ही गहरा है। हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं खुशी और शांति ढूंढने में, लेकिन हम में से बहुत समझ ही नहीं पाते असल में खुशी और शांति है क्या। हम खुशी को ढूंढते हैं भौतिकता में, चीजों में, लक्ष्यों में। हम किसी ओहदे में कहाँ काम करते हैं, कितना कमाते हैं, कैसा हमारा सामाजिक स्तर है, हम इन सब चीजों में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें इन सब से परे, इन सब से ऊपर भी कुछ है ये सोच ही नहीं पाते। यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। हर माँ बाप सोचते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे, खूब उन्नति करें, पैसों कमाएं, नाम कमाएं, घर गृहस्थी में अपना जीवन संपूर्ण करें। पर अगर हम ये सोचें कि हमारे बच्चे खुश रहें, चाहे वो जीविका कैसे भी चलाएं, कैसे भी अपना जीवन व्यतीत करें, तो शायद वो कभी जीवन का सार समझ नहीं पाएंगे। खुशी व शांति की अहमियत को वो नहीं समझ पाएंगे। हम इस संसार की, समाज की परिभाषाओं में इतना उलझ के रह जाते हैं, इन्हीं सीमाओं में प्रतिबंधित होकर दायरों में जीवन निकाल देते हैं। हम शांति और खुशियां सदा ढूंढते हैं आसपास की चीजों में, समाज की कई हुई भूमिकाओं को निभाने में और दूसरों की आशाओं और उम्मीदों में खरा उतरने को। पर दोस्तों, सच तो ये है कि हमारी खुशी और मन की शांति विकल्प है, परिणाम नहीं। ये चैन है जो हमें प्रतिदिन अपने हालातों में, परिस्थितियों में, रिश्तों में, अपने काम में करना है। हम खुद को स्वीकार करें, अपनी परिभाषा व लक्ष्य बनाएं जिसमें हमें खुशी मिले। पूर्ति होने की भावना जागृत हो तो हम अपना जीवन पूर्ण रूप से व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, शांति और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उसके लिए हम शुरुआत कर सकते हैं अब खुद से। खुद की संपूर्ण रूप से स्वीकार करके संसार या समाज अनुरूप नहीं बल्कि अपने अनुसार चलें। इसके लिए हमें बहुत धन नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए। हम सही तरीके से कोशिश करें तो जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी उम्र में हम सच्ची खुशी और मन की शांति
प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे हरीश जी, वेरी नाइस हरीश जी, वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। वेल एक्सप्रेस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, वेल एक्सप्रेस। इतने अच्छे विचार आपके, सुलझे हुए विचार थे बहुत ज्यादा, कि पीस और हैप्पीनेस का रियल मंत्र आपने बताया। रियल मंत्र, व्हाट आर द रियल मंत्र ऑफ हैप्पीनेस एंड नाउ आई कॉल अपॉन सुशील शर्मा जी। हाँ जी, प्रेजेंट। सुशील शर्मा जी, यस यस। मेरा एक भजन है, जैसा रितु जी ने चाहा कि बिकॉज आई एम ए न्यू एंट्रेंट, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं। तो मेरा पूरा नाम सुशील कुमार शर्मा है और आई एम ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम पटियाला, ज्वाइंड एज टेक्निकल ऑफिसर and retired as additional director from training and employment Lucknow, and I am settled in Lucknow. I retired in 2004 and post retirement I have done diploma in music and now pursuing music as my hobby. So this is my introduction. I will like to give my bhajan. Okay, thank you. राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सारे सारे गारे गारे निशा राजा पामा गारे सा, सारे सारे गारे गारे निशा रेगा पामा गारे सा। राम बिना आराम कहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हर सुलझन सुलझाए जा। राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया।
राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा, राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा, राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, फल उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, सुंदर भजन, सुशील जी भावना से गाया, आपने कंपोज किया, अच्छा गाया है ये, आपने कंपोज किया था, आपने लिखा है गाना, भजन आपने लिखा है? नहीं, एक सेकंड सुशील जी को आंसर करने देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुशील जी क्या ये आपने लिखा है? नहीं, लिखा हो मेरा ही नहीं है, थोड़ा अमेंडमेंट मैंने किया है अपने हिसाब से। क्या करा है? अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करे हैं। ओके ओके ओके, बट बहुत इन्होंने बताया था कि लिखते भी हैं, इन्होंने बताया था लिखते भी हैं। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सुंदर गाया, बहुत अच्छी गाया, बहुत अच्छा। और इस नाम से बढ़कर आत्मिक शक्ति, आत्मिक शांति कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती इससे बढ़कर आत्मिक शांति। और यदि हम वाकई में ट्रू सेंस में राम को पाना चाहते हैं या राम के पास होना चाहते हैं, तो हमें अपने जो सारे और भी चीजें हैं, बुराइयां हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ये भी तो बात है। ये साधु से राम थोड़ी मिलते। Now in the end, I'll request संतोष भटनागर जी। Yes. नमस्कार दोस्तों, आज हम शांति के बारे में बात कर रहे हैं। शांति एक ऐसा भाव है जो कुछ न होते हुए भी मनुष्य को संतुष्टि का भाव देता है, यानी जो संतुष्ट है वही सुखी है। लोग मन की शांति और खुशी पाने के लिए जीवन भर भटकते रहते हैं। पैसा मिल जाए तो खुश हो जाऊं, पुत्र पुत्री मिल जाए तो खुशी हो मिलेगी, दुकान कारोबार बढ़ा ले तो शांति मिल जाएगी, मगर ये तो और अधिक अशांति उत्पन्न करते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो भी किसी न किसी समस्या से परेशान है। तो जब तक इंसान ये सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये वो मिल जाए तो खुशी मिलेगी, तो इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। शिकवे तो सभी को है जिंदगी से साहब, शिकवे तो सभी को है जिंदगी से साहब, पर जो मौज में जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं ना, मुझे शांति मिल जाए, खुशी मिल जाए, आई वॉन्ट पीस। तो आई और वॉन्ट को हटा दो, पीस तो मिल ही जाएगी। तो इसलिए जब हमारा मन को चाहना छोड़ देगा तो शांति और खुशी दोनों मिल जाते हैं। तो छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती हैं, और ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। तो शांति की और खुशी की शुरुआत होती है मुस्कुराहट से। स्माइलिंग लिप्स कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, सो कीप स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। किसी ने, कवि ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। यानी जिसे किसी चीज की लालसा नहीं है, जिसके मन में चिंता हो ही नहीं सकती, और जिसका मन चिंताओं से ऊपर उठ गया वो तो राजाओं का राजा। छोटा सा मैंने बोला इसके विषय में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच संतोष जी, ब्यूटीफुली सेड। छोटा बोला पर बहुत गंभीर घाव किए। It was last but not in any sense least. This was so good. Sweet. सार हो गया, थोड़ा सा सार चक्का बोल दिया सबने, बस इतने अच्छे अच्छे बोलने वाले थे। मोना जी फर्स्ट, आप लास्ट, दोनों का मैच हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया है। मतलब क्या बोला, सब चीज अच्छी लगी। शांति वही है जो मन में बस जाए, तो आदमी की इच्छाएं बहुत है। बहुत अच्छा बोला। और जो आपको अच्छा लगा आपने वो बोला, और वो इसीलिए सबको इतना भाया सबको, कि एक्चुअली इनर पीस में भी यही होता है। we don't allow or choose another person or event to control your emotions. Whatever you feel like, you behave like that, and I'm sure that will be 100% correct. So don't let your inner peace be destroyed by behavior of others. जो आपको पसंद आता है आप वो कीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव और इम्पैक्ट वाला था। तो should we conclude it? बिल्कुल मंजू जी।
एक्चुअली क्रक्स तो यही है कि ट्रू हैप्पीनेस वी विल बी गेटिंग बाय शेयरिंग sorrows of others and sharing our happiness with others, giving love to others. 7-point mantra for peace and happiness. Celebrate being yourself. Carve time for those who matter. Be grateful for small blessings and do not hold grudges. Be on the move towards higher levels of fearlessness and creativity. Look at life for opportunities, not constraints. Keep shedding limitations. Keep raising the bar. And so thank you everyone for having a great evening, and thank you very much Ritu ji for giving me this opportunity to be a moderator and believing in me. Thanks all the participants for such wonderful preparations and sharing your thoughts and bhajans and devotional songs, whatever these are, and sharing and most of all, thanks to all other friends of our group who have not participated, but definitely they'll be participating in future. Today it was a point to make the new entrants participate in this program. So I was very keen to listen something from Vijay Bhamri ji, but I don't think time will permit us. So thanks all. Yes. So as I was ending the show, thank you so much everyone. And coming to Neelu's poem that she recited was so very wonderful. Harish ji with his short and precise talk, and Mr. Sushil Sharma again for the first time he was coming on, and so was Mrs. Santosh. So really, really wonderful to have you all here, and जल्दी मॉडरेटर का नाम बता दो ना. Colonel Sharma's name can be taken. Colonel Sharma Colonel Sharma को बनाइए. वो कर चुके हैं, वो एक हम लोग कर चुके हैं, जो उनको नहीं नए लोगों को देना है. ये सविता को पकड़ो. बोलो के बंदूक बचाइए. How many people are voting for Savita? I'm me 4 times. Me 4 times. Not now. अभी नहीं. हाँ वही हाथ उठाओ सारे. नहीं इसको साफ हटा दो, सब बोल दो भाई. और से ये अभी नहीं, थोड़े टाइम्स बाद. तुम क्या, तो हम ये सभी बोलते हैं. मैंने भी ऐसे ही बोला था. नहीं अभी नहीं, बाद में फिर बना दिया तो मुझे बना दिया. Dear all, Sanjana this side from Emoha. मैंने तो सबसे पहले आपका अटेंड किया था प्रवीण जी. ऐसे ले स्पिरिचुअल बंदियां दी गल हो रही है. तुसी ऐसे मॉडरेटर, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मॉडरेटर, ऐसे टॉपिक्स 2 in 1. परवीन आंटी. हां जी. जस्ट हैड अ टॉक विद रितु मैम, तो उन्होंने बोला कल बता देंगे. फिर बता देंगे. हाँ बोल देना कि हमने स्ट्रांगली बोला कि वी वांट ओनली सविता जी. दैट्स इट. हाँ ठीक है हाँ ले लेंगे. चलो ठीक है. ओके बेटा. बाय. Bye. Bye all. Bye. Good night. Good night everyone. तैयारी कर ले. तेल मालिश एंड चन पी करके तैयार हो जा. Okay, bye.